Good afternoon, everyone. Let us start today with the first chapter of class 10 science, chemical reaction and equation. So today we will start this chapter for the first time, and for this I would like to welcome each of you in eTalent online classes. So as you all know that this is the first chapter of class 10 science. Here we will understand what is the meaning of chemical reactions and what is the meaning of chemical equations. So according to the chapter, we will go from the first topic, defining chemical reactions. So let us start chemical reactions and equations. So what is the meaning of chemical reactions? So dear student, chemical reactions is a process where two or more elements react with each other to form a new product. Whenever two or more than two elements they react with each other, or two compound and one element, etc., when they react with each other to form a new compound or a new product, that process is called nothing but it is called a chemical reaction. So at first, according to the definition, we need to understand element. What is element? So there are all total presently 118 element in our periodic table. All metals, non-metals and metalloids. All metals, non-metals and also metalloids, they are nothing but they are a type of element. So when such kind of metal and non-metal or metal and metalloid combine with each other, or you can say react with each other, when they react with each other, then a new product will be formed, a new compound will be formed. That new compound is nothing but it will be the result, and that process is called nothing but it is called chemical reaction. So let us go to the definition of chemical reaction. We'll start from the basic, from the introductory, that is what is the definition of chemical reaction. What is chemical reactions? The definition will be when two or more elements or compounds react with each other, to form a new product, or you can also say a new compound. This is the process called chemical reactions. So dear student, हमें ये याद रखना होगा कि जब भी कोई दो या दो से भी ज्यादा एलिमेंट आपस में रिएक्ट करते हैं, एनी टू एलिमेंट और एनी टू कंपाउंड, कोई भी दो एलिमेंट या फिर कोई भी दो कंपाउंड आपस में रिएक्ट करते हैं, मीन्स ए केमिकल प्रोसेस करते हैं, सो दैट ताकि एक न्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो, एक न्यू कंपाउंड का फॉर्मेशन हो, उसी प्रोसेस को हम और कुछ नहीं, उसी प्रोसेस को हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन. अगर एग्जाम्पल के हेल्प से मैं समझाऊं, इफ आई टेक एन एग्जाम्पल, the simple example which is also there in our book of activity, first activity of the book, ये book का सबसे syllabus का सबसे पहला activity है chemistry में chapter 1 में, the reaction of magnesium ribbon with oxygen, then it gives a new product, a new compound is formed, एक new कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है. एक्टिविटी में बोला गया है कि जब मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो एक न्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, एक न्यू कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है. उसी न्यू प्रोडक्ट को हम कहते हैं, देन इट गिव्स अ न्यू प्रोडक्ट कॉल्ड मैग्नीशियम ऑक्साइड. एंड this magnesium oxide have its own chemical formula which we have learned in class 9. How to write a chemical formula, हमने ये क्लास 9 के चैप्टर नंबर 3 में जरूर स्टडी किया है
कि मैग्नीशियम ऑक्साइड ही नहीं और भी जैसा भी जितना भी केमिकल कंपाउंड्स हो उनको हम कैसे लिखे, हाउ टू राइट ए केमिकल कंपाउंड. सो ए केमिकल कंपाउंड इज ऑलवेज रिटन विद द हेल्प ऑफ वैलेंसी एंड विद द हेल्प ऑफ एलिमेंट सिंबल. हर एक केमिकल कंपाउंड को लिखने के लिए हमें एक कंपाउंड में उस एलिमेंट का सिंबल को जानना होगा और उस सिंबल का वैलेंसी को भी जानना होगा. अगर हम एक कंपाउंड में एक एलिमेंट का सिंबल एंड वैलेंसी को जानते हैं, डेफिनेटली देन वी विल बी एबल टू राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ दैट कंपाउंड. तो उसी तरीके से ये मैग्नीशियम ऑक्साइड भी एक केमिकल कंपाउंड ही है. तो इस केमिकल ऑक्साइड का जो केमिकल फॉर्मूला होता है that is always MgO. तो ये एक एग्जाम्पल भी है एंड ये चैप्टर का पहला एक्टिविटी भी है जहां मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न किया गया था और एक न्यू प्रोडक्ट, एक न्यू कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ है मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO. Now next we will see what exactly happened in this activity. इस एक्टिविटी में exactly हुआ क्या है उसको हम अभी समझेंगे. So in the activity it is said that there was a burner. We can say it like a Bunsen burner. एक Bunsen burner है. इस Bunsen burner के हेल्प से ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, सराउंडिंग में ऑक्सीजन का प्रेजेंस है, इस ऑक्सीजन के प्रेजेंस में एक मैग्नीशियम रिबन को लाया जाता है. दिस प्लेट लाइक स्ट्रक्चर इज नथिंग बट दिस इज द मैग्नीशियम रिबन. तो जैसे ही बर्नसन बर्नर के हेल्प से मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज बर्न. जब इस मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न किया जाता है तो ये दिस मैग्नीशियम रिबन टर्न्स इनटू ए पाउडर फॉर्म. ये मैग्नीशियम रिबन पाउडर फॉर्म में कलेक्ट होते हैं. इट गेट टर्न्स इनटू ए पाउडर. दिस पाउडर ऐश, ये जो पाउडर ऐश बनेगा, इसी पाउडर ऐश को, दिस पाउडर ऐश इज नथिंग बट दिस विल बी कॉल्ड एज मैग्नीशियम ऑक्साइड, दैट इज MgO. This powder oxide or this powder ash is collected in a device, or you can say it is collected in an apparatus like bowl-like structure, which we also call China dish. इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम एक डिश में कलेक्ट करेंगे, एक बाउल में कलेक्ट करते हैं. उसी बाउल को और कुछ नहीं चाइना डिश भी बोला जाता है. और इसमें जो कंपाउंड जो कलेक्ट होगा वो कंपाउंड का नाम ही होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड. तो यहाँ क्या हो रहा है? What is being going on here? Here a chemical reaction is being occurred, and in this chemical reaction, इस chemical reaction में तुम लोग देख सकते हो कि magnesium is one type of element. It get burned in presence of other type of element and forms a new product which we call magnesium oxide. So this type of chemical reactions we will learn more in this chapter. There are different types of chemical reaction which we are going to learn in this chapter. All total there are 5 types of chemical reaction: combination reaction, decomposition reaction, single displacement reaction, double displacement reaction, and the last one will be redox reaction. So before going to such different types of reaction, I hope that you all are clear with the first activity of the chapter, which is an example of chemical reaction. एक बार फिर से रिपीट करती हूँ कि क्विकली एक बार रिपीट करती हूँ. इस केमिकल रिएक्शन में मैग्नीशियम एलिमेंट को ऑक्सीजन एलिमेंट के साथ रिएक्ट किया गया है तो एक न्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, जिस न्यू प्रोडक्ट को ही हम कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड. Moreover, if I proceed to the third topic of the chapter is
चेंजेस। एक केमिकल रिएक्शन में कैसा टाइप का हम चेंजेस देखते हैं? What are the different types of changes that occurs in a chemical reaction? This is our next topic. एक केमिकल रिएक्शन में कैसा टाइप का चेंजेस हम देखते हैं वो अभी यहाँ पर हम समझेंगे. What are the different types of changes that occurs in a chemical reaction? केमिकल रिएक्शन क्वेश्चन मार्क. हाँ, ये नेक्स्ट टॉपिक है. हमने देखा कि केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या है. हमने देखा कि मैग्नीशियम रिबन किस तरीके से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके न्यू प्रोडक्ट मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन किया. और अभी है चैप्टर का थर्ड टॉपिक कि कैसा टाइप का चेंजेस होता है एक केमिकल रिएक्शन में. हमें न्यू एलिमेंट से न्यू प्रोडक्ट में, एलिमेंट टू प्रोडक्ट के फॉर्मेशन में कैसा चेंजेस दिखाई देता है. सो इन शॉर्ट, इफ आई टेल यू that there are basically 4 types of changes. 4 टाइप का चेंजेस हम जरूर देखेंगे इसमें. नंबर 1 चेंज जो होता है दैट इज चेंज इन स्टेट. चेंज इन स्टेट. नंबर 2 चेंज जो होगा दैट इज चेंज इन कलर. चेंज इन कलर. एंड नंबर 3 is evolution of a gas. And the last change that we see in a chemical reaction is change in temperature. So remember students that whenever 2 or more than 2 elements react with each other to form a chemical reaction, जब कभी भी कोई भी 2 एलिमेंट या 2 से ज्यादा एलिमेंट आपस में रिएक्ट करते हैं केमिकल इक्वेशंस के लिए, केमिकल रिएक्शंस फॉर्मेशन के लिए, तो उन एलिमेंट्स का स्टेट चेंज होता है. नाउ स्टेट क्या है? स्टेट एक बहुत बेसिक सा कंसेप्ट है जो हमने क्लास 9 में स्टडी किया था कि स्टेट ऑफ मैटर बेसिकली 3 टाइप का होता है. द मोस्ट कॉमन 3 स्टेट ऑफ मैटर: सॉलिड रिप्रेजेंटेड बाय S, लिक्विड रिप्रेजेंटेड बाय लेटर L एंड गैस रिप्रेजेंटेड बाय लेटर G. सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये है 3 स्टेट ऑफ मैटर. तो एक रिएक्शन में एलिमेंट सॉलिड टू लिक्विड भी हो सकते हैं, लिक्विड टू गैस भी चेंज हो सकते हैं, या फिर गैस टू सॉलिड भी हो सकते हैं. देयर आर सर्टेन चेंजेस in a chemical reaction. The state get changed. The second change in a chemical reaction is that color is being changed. Elements new product के formation के लिए color में भी changes करते हैं. अगर किसी भी element का color blue है, कोई भी compound का color अगर blue है, तो new product का formation जब उसका होगा, एक new compound का formation जब उसका होगा, तो it is not necessary, वो जरूरी नहीं है कि वो ब्लू कलर ही होगा. दिस ब्लू कलर कैन गेट टर्न इनटू ग्रीन ऑल्सो. सो देयर माइट बी सम चेंजेस इन कलर इन ए केमिकल रिएक्शन. एक केमिकल रिएक्शन में एलिमेंट्स का कलर भी चेंज होता है. ब्लू टू ग्रीन, रेड टू ब्राउनिश, and different types of examples are there. Moreover, the third change which we see in a chemical reaction is evolution of a gas. Evolution of gas means gas का formation होना. Like एक example अगर मैं देती हूँ, कार्बन. कार्बन को अगर मैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करूँ, दोनों ही गैस फॉर्मेशन में है. द स्टेट ऑफ मैटर फॉर कार्बन इज G. कार्बन का जो स्टेट ऑफ मैटर है वो G है. ऑक्सीजन का भी जो स्टेट ऑफ मैटर है वो G है. तो कार्बन एंड ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन के वजह से जो प्रोडक्ट अभी बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, वो भी एक गैस ही है. वो भी एक स्टेट ऑफ मैटर उसका गैस ही होता है. तो हमें याद रखना है कि केमिकल रिएक्शंस में गैस का फॉर्मेशन भी होता है, गैस का इवॉल्विंग भी होता है. एंड many more examples are there where gas is evolved, gas is formed, different types of gas. And the fourth change now, the last change that we see in a chemical reaction is change in temperature. Elements का अपना खुद का temperatures में भी change आता है. अगर कोई भी element, any element before reaction के पहले, मतलब अगर उस एलिमेंट का टेम्परेचर, सपोज लेट अस कंसीडर कि उस एलिमेंट का टेम्परेचर बिफोर रिएक्शन 30 डिग्री सेल्सियस है.
अगर उस एलिमेंट का टेम्परेचर बिफोर रिएक्शन 30 डिग्री सेल्सियस है, देन इट इज नॉट नेसेसरी, ये जरूरी नहीं है कि रिएक्शन के बाद भी आफ्टर रिएक्शन टेम्परेचर 30 डिग्री ही रहेगा. नो, not necessary. The temperature might get changed to 20 degree also. It means, in short, it can become minimum. It can become minimum temperature, or it can also get maximum. It can also get maximum. So, dear student, these are the four changes. These are the four changes which generally occurs in a chemical reaction. State का चेंज होना, कलर का चेंज होना, गैस का इवॉल्विंग होना, गैस का फॉर्मेशन होना मतलब, एंड टेम्परेचर, एलिमेंट्स का टेम्परेचर में चेंजेस होना. सो दीज आर द 3 टॉपिक्स of our class 10 chemistry first chapter. In our next class we will learn how to write a chemical equation. किस तरीके से chemical equation को हम लिख सकते हैं. केमिकल इक्वेशन को लिखने के लिए जो सिंबल वैलेंसी का नेसेसिटी होता है वो हम क्लास 9 के कंसेप्ट से एक बार रिवाइज करेंगे, एंड रिवाइज करके देन वी विल लर्न हाउ टू राइट ए कंपाउंड, केमिकल कंपाउंड, एंड देन वी विल लर्न हाउ टू राइट ए केमिकल इक्वेशन. बेसिक से स्टार्ट करेंगे. तो बेसिक से स्टार्ट करने से क्या होगा, हमारा फाउंडेशन स्ट्रांग रहेगा. फाउंडेशन स्ट्रांग रहने से हम कोई भी जैसे भी टाइप का क्वेश्चन हो, चाहे वो कंसेप्चुअल, हाई लेवल, कॉम्पिटेंसी बेस्ड, जैसे भी टाइप के क्वेश्चन हो वो हम सॉल्व कर पाएंगे. सो दिस 3 टॉपिक्स एवरीवन शुड रिवाइज इट, and we'll proceed with our next class very soon. Thank you.